Okay, this is my revision class for language C. Basically, we are going to start from very first lecture. So whatever doubts you guys will have, definitely you can ask. You know, you can interrupt me in between, and you can ask your doubts. Okay. The first thing I taught about what is language. Okay. Anybody tell me what is language? Class? Anybody language? Can you tell me what is language? Don't go for technical answer. Just I am simply asking what is language. A way of communication. Way of communication, great. The way of communication is known as language. Yeah, Hindi is a language, Chhattisgarhi is a language, okay, English is a language, because by which we can communicate something. Like language C, why it has got why no we call it as a language? Because we communicate with the system through my programming. Because we have certain number of problems and we try to solve with the help of this language, and we communicate with the system. तो बेटा आप यहाँ को we have certain rules. आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश will have certain alphabets, number of alphabets, 26 alphabets. आप हिंदी पढ़ते हो, आप हिंदी में आपको 52 alphabets. तो एंड कुछ ग्रामर आपके पास दिए रहेंगे, पर देयर विल बी सम ग्रामर, यू नीड टू फॉलो दैट ग्रामर. आप इंग्लिश में बात करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा उस ग्रामर रूल्स को. जस्ट लाइक दैट वी फॉलो सम रूल्स इन लैंग्वेज ऑल्सो. तो वो रूल्स मैं आपको वन बाय वन समझाते आऊंगा. बिकॉज we follow some sort of rules, we follow some sort of structure, we follow some sort of procedure. So it is known as language. Why? Because we communicate with the system with the help of this language. So beta, what is C language? It is in structured language, high level. Actually it's a middle level language. इसको आप correct कर लेना बेटा आप लोग सभी. It's middle level language. And machine independent language, it is medium between human and the computer system, system that only understands. Okay. मैं आपको पहले एक बार समझाता हूँ कि आप लैंग्वेज की बात क्यों करते हो. व्हाइट इज गॉड, जो आपका क्या बोलना चाहिए, हम इसको स्ट्रक्चर ही क्यों बोलते हैं, है ना. अब हम उसमें स्ट्रक्चर के बाद उसमें उसको कुछ चीजें आपको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. व्हाई वी कॉल इट प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज? ये क्वेश्चन इट मेक द इंटरव्यूअर में आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई लैंग्वेज इज नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. The first thing you will learn about, okay, language C is also known as procedural okay oriented language. Procedural oriented language. Why? Anybody tell me why? मैंने आपको आंसर पहले बताया था. Why we call it language is a procedural oriented language? Why? Anybody? Because it follows a particular procedure. Exactly. We follow some sort of procedure. We follow particular procedure to solve my problem. Suppose if you are asked, you have to add two numbers. Add two numbers. This is my question. You are asked, आपको दो नंबर को ऐड करना है. Okay. What first thing you will do? Suppose you are in math class. What first thing you will do? Class क्या करोगे? What first thing you will do? Pen language. Exactly. You will take pen. Okay. What is next thing, beta? Sir, open notebook. Open notebook. ठीक है. Open notebook. Okay. Correct. Then what is next step? आपने मैथ्स की क्लास में हो, सर ने आपको बोला you have to add two numbers. First thing you will do, you take two numbers then. Okay, take two numbers. Okay, take two numbers. Great. And what is next step? Add the two numbers. Add those two numbers. Okay. And next? Give the result. Exactly. Yeah, print the result. जो भी आप लोग, है ना, print the result और display the result. Print the result. Okay. So this is my procedure. Because I have this problem, this is my problem, and this problem, the solution is given like this. Because we follow some sort of procedure. Like
अब हम बात करते हैं बेटा, दिस इज माय जनरल प्रोसीजर, बिकॉज आपको अगर आपको मैथ्स की क्लास में बोला है कि आपको ये मैथ्स 2 नंबर को ऐड करना है, तो विल फॉलो दिस सर्टेन प्रोसीजर्स। बट वी आर इन लैंग्वेज सी क्लास, तो हमारे पास थोड़ा सा बाकी सब चीजें हम सेम चीज करें, बाकी थोड़ा चीजें हमारे ओके। लैंग्वेज सी में आप जब बात करते हो, हमारे पास ये पेन क्या होगा, हमारा पेन क्या होगा, फ्रॉम वेयर विल राइट, पेन क्या होगा यहाँ पे, की- हाँ IDE सर, कीबोर्ड Keyboard. कीबोर्ड, द कीबोर्ड विल बी माय पेन, ठीक है। आप यहाँ से आप राइट करोगे। एंड व्हाट इज द नोटबुक, एडिटर, Turbo C++. कंप्यूटर एडिटर एडिटर, आप The एडिटर में कोई editor. भी यूज कर सकते हो। हाँ, लाइक टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी, या फिर आप लिख, यू कैन यूज टर्बो टर्बो सी प्लस प्लस। एक सेकंड, ओके, टर्बो सी प्लस प्लस। और आपके पास बहुत सारे हैं कोड ब्लॉक्स, मैंने बताया था ना आपको शायद क्लास, कोड ब्लॉक्स। हाँ, आपके पास है आप आईबीएम के, अब जो आपके जितने भी आप एडिटर वो यूज करते हो, आईबीएम सी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो दिस आर द एडिटर्स, ठीक है। यू कैन यूज, यार बोल सकते हो दिस आर माय नोटबुक, जहाँ पे हम लिखेंगे, ओके। एंड व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, टेक 2 नंबर्स, यू विल हैव 2 ऑप्शन। आप नंबर कैसे नंबर इनपुट लोगे, आप टीचर से पूछोगे, either you will ask from your teacher or directly you can take your own number। तो आप पहले आप 2 नंबर इनपुट ले लो, ठीक है। तो 2 नंबर आप इनपुट कैसे लोगे बेटा, आप 2 नंबर इनपुट लोगे, इनपुट 2 नंबर्स, ओके। आप यूजर से पूछोगे, आइदर यूजर, ठीक है, यूजर से पूछो, बेस्ट है। एक सेकंड, somebody has joined, who has joined recently, अनमोल, कौन ज्वाइन किया, अनमोल ज्वाइन किया क्या अभी, ओके, नो इशू। सर मैं पहले से हूँ। अनमोल पहले से हो, ओके ओके ओके, नो इशू। अभी हम क्या करते हैं बेटा, इनपुट 2 नंबर्स, हम यूजर्स इनपुट लेंगे, उसके बाद हम क्या करें बेटा, मैंने बताया, आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। व्हाट इज ऑपरेशन वो हियर, एडिशन ऑपरेशन, क्लास क्लियर है ना, बिकॉज वी नीड टू ऐड 2 नंबर्स, ओके। एंड व्हाट इज लास्ट बेटा, सिंपल आप प्रिंट करो या डिस्प्ले द आंसर। डिस्प्ले, डिस्प्ले आप कहाँ पे डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले कहाँ पे करोगे, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, हाँ बेटा, मॉनिटर और स्क्रीन, नो इशू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वी फॉलो सेम प्रोसीजर इन लैंग्वेज सी। बेटा लैंग्वेज सी इज सिंपल एज दैट, लाइक यू आर इन मैथ्स क्लास, हम मैथ्स क्लास में ही हैं इनडायरेक्टली, ओके। तो हमको क्या करना है बेटा, हमको सिंपल एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो इफ एनीबडी आस्क यू व्हाई लैंग्वेज इज नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिकॉज वी फॉलो सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर, ओके। द नेक्स्ट थिंग दे विल आस्क अबाउट लैंग्वेज सी is also known as structured oriented language, okay। anybody answer, कोई आंसर देगा क्लास, क्लास क्लास, anybody, is my voice coming or not, Yes, sir. okay, anybody please answer, why do we call it language is a structure oriented language, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, nobody, okay, no issue, we follow, नो सर okay, we follow some, okay, no issue, we follow some structured, okay, we follow some structure to solve the problem, okay। अभी हमने क्लास में अभी तक जितने प्रोग्रामिंग किया होगा, हमने यहाँ देखा, व्हाट इज फर्स्ट थिंग वी डू व्हाइल प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू इन व्हाइल वी डू प्रोग्रामिंग, एनीबॉडी टिल नाउ, अभी हमने क्या किया अभी तक, आपको मैंने कोई नंबर बोला, एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो हम पहला चीज क्या करेंगे प्रोग्राम लिखते समय, Header file. एग्जैक्टली, Include आपने क्या, header file. हाँ, तो आपने पहला क्या किया बेटा, आपने यहाँ पे लिखते हो इंक्लूड हेडर फाइल, इंक्लूड हेडर, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और लिखना, स्टार हेडर फाइल कुछ नहीं, कुछ और लिख दो, ऐसा नहीं, बिकॉज वी फॉलो सम स्ट्रक्चर ना, इंक्लूड हेडर फाइल। उसका क्या करते हैं बेटा हम लोग, उसका हम क्या करते हैं,
क्लास Void main. Point function. Word means sir. मेन फंक्शन इंक्लूड करते हैं. ओके, मेन फंक्शन. ओके, मेन फंक्शन. ओके, मेन फंक्शन जब भी आप यूज करोगे वहां पर भी आप ध्यान दो, मेन फंक्शन में जब भी आप यूज करो वहां पर भी एक प्रोसीजर है बेटा. कैसे प्रोसीजर है? बिकॉज आप पहले क्या करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना क्लास, वेरिएबल Yes, डिक्लेरेशन. sir. Yes, sir. हाँ, उसके बाद हम करते हैं बेटा जो भी ऑपरेशन, जैसे आप इसमें क्लियर कर लेते हो तो जो उसका जो भी ऑपरेशन है अब वो परफॉर्म करते हो. इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, उसके जितने भी स्टेटमेंट हैं हम वो लिख देते हैं पूरा. तो ये हमें प्रोसीजर किया. उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं बेटा, मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं. क्लास एग्री ना? मेन फंक्शन क्लोज हो गया. Yes, sir. उसके बाद बेटा आप एक फंक्शन पढ़ने वाले हो, पता है? उसके बाद मेन फंक्शन के नीचे वी ट्राई टू डिफाइन और एक्स्ट्रा फंक्शन, डिफाइन एक्स्ट्रा फंक्शंस, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी फंक्शंस. मैं बताऊंगा इसको फिलहाल. तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो वी फॉलो सम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, बिकॉज हम इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है. ऐसा नहीं है कि हम हेडर फाइल इंक्लूड नीचे करें, मेन फंक्शन कहीं पे लिखे, है ना. एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी एक प्लेस है. याद है मैंने बताया था अगर आप सिर्फ फंक्शन यूज करते हो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही करोगे, पहले नहीं करोगे. टर्बो सी में याद है क्लास, मैंने बताया था क्लास. Yes, sir. हाँ, तो बेटा Yes, sir. उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड लैंग्वेज. आई रिपीट, लैंग्वेज इज नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज वी फॉलो सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व माय प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड लैंग्वेज. Okay, the next thing is why language is known as structure oriented language, because we follow some sort of structure to solve my problem. That is what is known as structural oriented language. Class, I hope this is clear. Should I proceed? आगे बढ़े. Yes, sir. Okay, screenshot ले लो, लेना screenshot. No issue. चल, एक क्वेश्चन ऐसा आप थे पूछ सकते हैं आपसे. Okay, language C. Okay, language C is developed by, बेटा किसके डेवलप किया? लैंग्वेज सी वो Dennis Ritchie. हाँ, वो डेवलप्ड बाय, हाँ एक आपको मैं दिखाता हूँ, बाय डेनिस रिची. डेनिस रिची. ओके क्लास, कब डेवलप किया बेटा? कब इसका जो डेवलपमेंट पीरियड था बेटा, डेवलपमेंट Sir, 1970. 1973. This was the development period. ये जब के स्टार्ट हुआ 4 साल में डेवलप हुआ लैंग्वेज सी. तो दिस इज द डेवलपमेंट पीरियड. ओके, और एक्चुअली ऑफिशियली जब लॉन्च कब हुआ मैंने आपको बताया था ये 1972. हाँ, इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन ईयर, कब लॉन्च हुआ बेटा? 1972 पे लॉन्च हुआ था. अच्छा, ये डेवलप कहाँ पे डेवलप होता है? ये प्लेस कहाँ पे डेवलप होता है बेटा? AT&T Bell Lab USA. हाँ, AT&T बेल लैब में हुआ था. ये कहाँ पर है बेटा? ये USA. यूएसए में. तो दिस इज द स्टोरी, सिंपल स्टोरी. ओके, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाई लैंग्वेज सी हैज गॉट लैंग्वेज सी नेम. अब उसका नाम अमित लैंग्वेज क्यों नहीं है? उसका नाम कुछ और नाम क्यों नहीं है? उसका नाम सी मिला क्यों उसको? Because लैंग्वेज before language C, it has a language base, and that's why it got language C. बेसिक लैंग्वेज. ओके, बिफोर लैंग्वेज सी, है ना, बिफोर लैंग्वेज सी देयर वाज अ लैंग्वेज लाइक बेसिक, एंड शॉर्ट फॉर्म वाज बेसिक का शॉर्ट फॉर्म क्या था बेटा? हम क्या बोलते थे उसको? Sir, B. बी बोलते थे. तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लैंग्वेज जो हमारा इवॉल्व होया, जो आया अभी, उसको हम क्या बोले बेटा? सी बोले. इसीलिए तो आप ऐसा कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है कि हम उसको लैंग्वेज सी क्यों बोलते हैं. ओके, बिकॉज हम अब इसमें जब बात करते हैं लैंग्वेज सी का, इसका हिस्ट्री सिंपल यही है कि बिकॉज लैंग्वेज सी के पहले एक लैंग्वेज फेमस था, बेसिक लैंग्वेज. इट वाज वेरी फेमस एंड द शॉर्ट फॉर्म वाज बी. तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लैंग्वेज हम कनेक्ट करते हैं, उसको लैंग्वेज का नाम क्या देते हैं बेटा? लैंग्वेज सी. ओके क्लास. ओके, वन थिंग. ओके, लैंग्वेज सी के बाद आपको पता है लैंग्वेज सी प्लस प्लस क्यों पढ़ा? आप लोग लैंग्वेज सी प्लस पढ़ोगे आगे थर्ड सेमेस्टर में. सी प्लस प्लस क्यों बोले? उसका नाम बी क्यों नहीं दे दिए? कोई बताएगा आंसर?
लैंग्वेज सी, सर, उसको नाम कायदे से तो दिया होना चाहिए। सर वो क्योंकि बी C का के बाद सी आता है उसका नेक्स्ट जनरेशन है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसको नेक्स्ट जनरेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, तो बी प्लस प्लस कर सकते नेक्स्ट जनरेशन है, तो फिर उसको हम लैंग्वेज सी दे दिए बिकॉज ये टोटली डिफरेंट है। और इसका नाम ये क्या है, सी प्लस प्लस क्यों दे दिया उसको नाम? हाँ बोलो बोलो। नाम जी देना था। क्लासेस। सी विद क्लासेस, करेक्ट है, गुड। पहले इसका नाम लैंग्वेज सी प्लस प्लस का नाम सही था बेटा, क्योंकि उसका नाम था सी विद क्लासेस। ओके, व्हाई? बिकॉज हम यहाँ पे लैंग्वेज सी में क्लास ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी प्लस प्लस। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है ये प्लस प्लस ही क्यों दे दिया? बिकॉज दिस प्लस प्लस डिनोट्स ओवरलोडिंग। क्या डिनोट करता है बेटा? प्लस प्लस क्या डिनोट करता है बेटा? आप लोग पढ़ोगे आगे। दिस प्लस प्लस डिनोट्स ओवरलोडिंग। हाँ बेटा, ओवरलोडिंग। तो अभी ये बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक दिस वर्ड ओवरलोडिंग? क्या लगता है आपको ओवरलोडिंग से क्या समझ आ रहा है? ओवरलोडिंग से क्या? सिंपल मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं आपसे, टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूँ। ओवरलोड है यार मैं बहुत ओवरलोड हूँ, मतलब सर ओवरलोडिंग मतलब ओवर चीज से भी कर। मैं ओवरलोड हूँ बोलते ना आप लोग, ओवरलोड यार बहुत आज ओवरलोड हूँ, बहुत काम होता है ना इसको। और वर्क ऐड किए। हाँ, जैसे बेटा आप लोग, जैसे अभी यू आर इन स्टूडेंट राइट नाउ, अभी आप एक स्टूडेंट हो। आप जब घर में रहोगे, आपको अगर मार्केट जाना बोले तो आप मार्केट से सामान भी लेके आओगे, आप फ्रेंड के साथ मूवी देखने भी जाओगे, ठीक है, पढ़ाई भी करोगे, एग्जाम भी करोगे, सारी चीजें आप करो। पर्सन एक हो बट यू आर बिहेविंग डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ओकेशन। आप डिफरेंट ओकेशन में डिफरेंट बिहेव, आप ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में आप यहाँ पे आप जैसे घर में बिहेव करते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बिकॉज यू सी द कंटेक्स्ट, यू सी द प्लेस, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो। दिस इज, तो आप पर्सन एक हो बट यू आर बिहेविंग डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ओकेशन। तो आप पर्सन एक हो और डिफरेंट डिफरेंट काम करो, मतलब आप ओवरलोड हो। क्लास गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम इसको पढ़ेंगे बाद में डिटेल में सी प्लस प्लस में। तो कोई चीजें जो प्लस प्लस कोई पूछे आपसे इंटरव्यू टाइम, इसलिए सब समझा रहा हूँ कि अगर कोई इंटरव्यू टाइम आपसे पूछ दिया कि लैंग्वेज सी का नाम इसलिए पढ़ा बिकॉज के पहले लैंग्वेज बी था, तो लैंग्वेज सी के बाद सी प्लस प्लस का नाम डी क्यों नहीं पढ़ा? डी इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज दिस प्लस प्लस डिनोट्स ओवरलोडिंग। आप इतना बोल रहे हो फिलहाल। अभी जब आप सी प्लस पढ़ लोगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्लास? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं लैंग्वेज सी को एक और चीज मैंने बताया था आपको, याद है क्लास? रिमेम्बर लैंग्वेज सी को एक और चीज हम बोलते हैं, Some middle level language. मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोलते हैं, और मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल में चल रहा, ठीक है। लैंग्वेज सी इज ऑल्सो नोन एज मिडिल सॉरी लेवल लैंग्वेज। ओके क्लास, अभी ना आप लोग बुक में देखना, बुक में बहुत सारे बुक में हाई लेवल लिखा होगा, तो बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ आप इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में डेनिस रिची के बुक में मिडिल लेवल ही लिखा है। बिकॉज उसका रीजन भी दिया है, बिकॉज हम जितने भी हम बुक पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा इसको कंसिडर भी करते हैं, कुछ बुक में इसको हाई लेवल भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा प्लीज कॉल इट एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, है ना। बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग भी होती है, तो वो इट्स नियर टू कोर ऑफ द मशीन, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस आप ये बोलना मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑल्दो इट हैज रिटन इट्स हाई लेवल लैंग्वेज मेनी बुक्स, बट आप जब स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ोगे ना वहां पे मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं। ओके, कोई रीजन बताएगा व्हाई वी कॉल इट मिडिल लेवल लैंग्वेज? लैंग्वेज सी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज? कोई बताएगा? Sir, because it binds the lower level language and the higher level language. ओके, करेक्ट है। एंड एनीबॉडी? उसके अलावा कोई और? ओके, मैं बताता हूँ। लैंग्वेज सी के पहले लैंग्वेज थे एक मशीन लैंग्वेज, याद है बेटा मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज? Yes, sir. मशीन लैंग्वेज था लैंग्वेज। ओके ओके, लैंग्वेज क्या था बेटा हमारे पास? मैंने बताया था आपको क्या था नेक्स्ट, याद है क्लास? असेंबली लैंग्वेज। Sir, assembly language. असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। और उसके बाद ये हो गया, चलो ये बात अलग, ये छोड़ दो। हम इन दोनों को बोलते हैं बेटा, हम इन दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इन दोनों को हम लोग? Low level language. लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। ओके बेटा, मैं आपको पूछे हम लो लेवल लैंग्वेज से क्या समझ आता है? हम इसको लो लेवल ही क्यों बोलते हैं, इसको और कुछ नाम क्यों नहीं दिया? लो लेवल मतलब क्या होगा? लो लेवल नहीं बेटा, हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लो लेवल बाइनरी होगा। नहीं, इसका नाम लो लेवल क्यों पड़ा? लो क्यों बोलते, हाई क्यों नहीं बोले इसको, या नाम इसका लो क्यों बोल रहे इसको?
आप एक चीज ध्यान रखना, लो लेवल कहने का मतलब क्या, वो कम यूजर फ्रेंडली होगा वो। समझ आ रहा है ना क्लास? कम Yes, यूजर sir. फ्रेंडली, लेस यूजर फ्रेंडली, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा क्यों लो, है ना। और एक और था हमारे पास लैंग्वेज, हमारे पास था बेटा लैंग्वेज सी के पहले फोर्ट्रान, बताया था ना क्या, फोर्ट्रान। Yes, sir. कोबोल, हाँ बेटा Yes, कोबोल। sir. COBOL. हाँ, कोबोल था। बेसिक, हाँ बेटा कोबोल। उसके बाद था बेसिक, है ना। तो ये दिस वेर द हाई लेवल एट दैट टाइम, ये लैंग्वेज को हम उसमें कंसीडर करते थे हाई लेवल पे। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ओके, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। बट हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली था बेटे, थोड़ी ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। ओके, बिकॉज इसमें कोडिंग करना, हमारा जो मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना और फोर्ट्रान या कोबोल बेसिक में कोडिंग करना बहुत इट्स वेरी फार डिफरेंट। उसमें इसमें आपको इसमें कोडिंग करना, मशीन लैंग्वेज में बताऊंगा अभी, मैं कुछ देर में समझाऊंगा व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इट्स वेरी हार्ड बिकॉज यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज। assembly language is just next level of machine language, but it's easier than the machine language. assembly language में क्या, हमने कुछ instructions ऐड कर दिए मशीन लैंग्वेज, तो क्या बन गया assembly language। इट्स इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज, ये आपका बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैंने बताया था आपको मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। क्लास Yes, sir. ओके। Yes, sir. Sir. तो ये जो था लैंग्वेज सी, इसके बाद जो आया बेटा लैंग्वेज सी exist between these two generations, लैंग्वेज सी। तो लैंग्वेज सी को क्या बोलते हैं, इसके फीचर्स वो यहां से भी ले रहे हैं, आ रहा है समझ, इसके फीचर्स वो यहां से भी ले रहे हैं, प्लस इसके फीचर्स वो यहां से भी ले रहे हैं। दैट इज वाई लैंग्वेज सी इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्लास Middle level. याद रहेगा, बिकॉज दिस लैंग्वेज सी एग्जिस्ट बिटवीन दिस लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज हाई लेवल लैंग्वेज। It gets properties from both low level language as well as from the high level language. That is why C will be considered as a middle level language. क्लास बता लोगे, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो क्लास बता लोगे? Yes, sir. ओके, तो ये सिंपल सा रीजन है बेटा मिडिल लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। इट हैज गॉट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोथ लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। डन? डन सर। Yes, sir. ओके, अभी मैं आगे नोट्स पे आता हूँ बेटा। बट अभी मुझे ये पढ़ाना था, मुझे अभी मैं मशीन लैंग्वेज पे बात करता हूँ। मशीन लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट इन सिलेबस, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या होता है, सो दैट कि आप थोड़ा कंसीडर करो कि हम लैंग्वेज सी क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग लैंग्वेज सी। बिकॉज अभी हमारे पास, इमेजिन करो बेटा, अगर बस आपको पहले बहुत सारे अच्छे लैंग्वेज आपके पास है, पहले से डेवलप्ड है अच्छे से लैंग्वेज, तो हम क्यों नया लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी? नया लैंग्वेज तब जरूरत पड़ेगी जब हमको कुछ उससे अच्छा मिलेगा। तो मशीन लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी बेटा कुछ, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद इन दोनों में, तीनों में प्रॉब्लम थी, तो कुछ नया लैंग्वेज जनरेट हुआ हमारा। बताते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, मशीन लैंग्वेज program written in high level language are translated into assembly language or machine language by a compiler. Okay, मुझे पहले compiler बताना था। Okay, कोई बताएगा what do you mean by compiler? Compiler कोई बताएगा बेटा? Anybody? Class? Start which translate binary language to हाँ बोलो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, आप चीजों को ना आप क्या बोलते चाहिए, आप बहुत इजी समझो चीजों को, पता, कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत आसान है। कोई बताएगा? कोई भी और ट्राई करेगा क्या? कोई? So which translates commanding language into binary. ओके ओके, अभी हम लोग लैंग्वेज, बिकॉज ये कंपाइलर की जरूरत कब कब पड़ती है, बिकॉज मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी, तो आप मैं से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। इमेजिन करो मुझे हिब्रू आती है, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो कैन वी कम्युनिकेट? क्लास, कैन वी कम्युनिकेट? इज इट No, sir. No, sir. मुझे सिर्फ हिब्रू आती है, मैं हिब्रू बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको हिब्रू नहीं आती है, आप सिर्फ इंग्लिश आपको आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन लेके आता हूँ जिसको क्या आनी चाहिए, जिसको क्या आनी चाहिए, जिसको क्या आनी चाहिए, So both language. दोनों language.
तो बोथ लैंग्वेज में क्या होना चाहिए कि अगर मैंने लैंग्वेज सी पे बात किया, लैंग्वेज सी पे मैंने आपसे कुछ बोला, लैंग्वेज में बात किया, और मैंने उसको क्या किया भाई, मैंने बिकॉज लैंग्वेज सी जो है होता है वो हमारा एक अल्फाबेट्स में काम करता है। बिकॉज यार प्रिंट एफ लिखते हो, उसमें स्कैन एफ लिखते हो, मेन फंक्शन लिखते हो, व्हाट आर दे आर सिंपली अल्फाबेट्स क्लास, what are they are simply Yes, sir. but my system does not understand alphabets. It does not understand anything except binary 0 and 1. तो मेरा प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं लैंग्वेज से बात करूंगा तो मैं मशीन को नहीं समझा सकता, तो आई नीड अ कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स माय लैंग्वेज सी इनटू मशीन लैंग्वेज। आ रहा है क्लास, समझ आ रहा है? आई नीड अ कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स मशीन इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर करता है क्या बेटा, आप कंपाइलर बेसिकली दो चीज में कन्वर्ट करेगा, आइदर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज, या फिर करेगा असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज, डिपेंडिंग अपॉन द कोडिंग ऑफ कंपाइलर। हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है, आपको आप लोग एक और चीज पढ़ने वाले हो, कंपाइलर डिजाइन। मुझे नहीं पता सिलेबस में होगा नहीं होगा, बिकॉज तो मैं जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूँ तो आपको यही बोलता हूँ कि आपको जो डिपेंड करता है कंपाइलर की कोडिंग पे, कि अगर कोडिंग क्या है, मशीन में कन्वर्ट करना है तो मशीन में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज असेंबली में कन्वर्ट करेगा। अगर वो असेंबली में कन्वर्ट करता है तो आई नीड असेंबलर। याद है, मैं आपको क्लास में समझाया था, क्लास असेंबलर, Yes, sir. assembler Yes, sir. काइंड ऑफ कंपाइलर ही है which converts assembly into machine language। छोड़ो, leave it। तो कंपाइलर क्या बोलते थे, बट अब मुझे समझा दो कंपाइलर क्या, इजी सब इसमें इजी वर्ड में बोलो। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर which converts one language into another language। क्लास बोल सकते हो? कैन बी सेड? Yes, sir. Please respond। Compiler is a translator which converts one language into another language। तो हम कंपाइलर बेसिकली हम वही बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे वापस देखो, प्रोग्राम written in high level language are translated into assembly language or machine language by a compiler। It is a low level programming language that entirely of binary digits 0 and 1। तो मशीन लैंग्वेज किस पे काम करते हैं बेटा, 0 1 पे, so that computer can understand and act on them। तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है बेटा सिर्फ 0 1 पे काम करता है। सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू कन्वर्ट योर लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे बताया था ये हम जो मशीन जो होता है वो 20 बिट्स इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। क्लास यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, हटा sir. दूं, ये हटा दूं क्या, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं हटा रहा हूँ इसको। ओके, machine language works upon machine language works okay upon 20 bits of instructions। ओके, तो कैसे काम करता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई बताएगा? मैंने यहाँ पे सपोज लिखा, मैंने यहाँ पे 20 बिट्स बनाया मैंने। ओके, द फर्स्ट 4 बिट्स, क्लास यू रिमेंबर? Yes, sir. Opcode. वेरी Yes, गुड। sir. ये जो पहला फर्स्ट 4 बिट होता है बेटा, ओके एक सेकंड, हाँ ओके ठीक है, एक सेकंड। द फर्स्ट 4 बिट्स, जैसे आपका यहाँ से ना यहाँ से यहाँ तक है, ये फर्स्ट 4 बिट्स है। ओके ओके ओके, फर्स्ट 4 बिट्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 8 बिट्स है, ये आपका हो जाएगा आपका 8 बिट्स, 8 बिट्स, ओके, और लास्ट 8 बिट्स। ओके, क्लास यू रिमेंबर? Yes, sir. Operand sir. 1 and operand 2. हाँ, तो ये जो उसको मैं इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट करता हूँ, ये आपका 4 हो गया, इसको आप 8 में कन्वर्ट कर लो, 8 हो गया, 1 ये भी 8 हो गया, ओके 1 2 ठीक है, 1 2 ओके 8 बिट्स नो। तो जो फर्स्ट 4 बिट्स है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा ऑप कोड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑप कोड। एक सेकेंड। एंड नेक्स्ट 8 बिट, द फर्स्ट 8 बिट्स आफ्टर ऑप कोड क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग? Operand. Operand 1. ऑपरेंड 1। एंड नेक्स्ट लास्ट 8 बिट्स
क्या बोलते हो उसको? operand 2. ऑपरेंड 2। तो इससे होता क्या है सर, ये ऑपरेंड 1 क्या होता है, ऑपरेंड 2 क्या, आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सपोज आपको मैंने बोला आपको एक काम करना, a प्लस बी को मुझे ऐड करना है। एक काम पहले नंबर लेते हैं, मुझे 5 और 6 को मुझे ऐड करना है। तो ये ऑपरेशन क्या बेटा, व्हाट इज ऑपरेशन, व्हाट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है मेरा, एडिशन। 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 तो Addition. इसको बोलते हैं ऑप कोड, जो आपका ऑपरेशन रहता है, जो ना ऑपरेशन कोड, ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड है आपका है एडिशन। तो मशीन लैंग्वेज में पहले से ना कुछ आपके पास पहले से क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको पहले से ऑप कोड गिवन रहता है। जैसे मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, जैसे मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ऑप कोड जो भी होगा, सपोज 1001, सपोज ऐसा है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप कोड पहले से लिखा होगा 1010, ठीक है। और सपोज एक सेकंड, एंड सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑप कोड है आपका, ओके, मल्टीप्लिकेशन का ऑप कोड है सपोज 1000। डिवीजन का ऑप कोड है सपोज लिखा आपने 0011। तो दिस आर द ऑप कोड विच इज प्री डिफाइंड, ये पहले से फिक्स्ड है बेटा आपको क्लास, ये पहले से फिक्स्ड है। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ये आपको डिपेंड करता है मशीन पे। क्लास समझ आ रहा है बेटा, ये मुझे नहीं पता, तो क्या होता है, बस ये समझा रहा हूँ कि पहले से मेरा ऑप कोड फिक्स होता है, कि ऑपकोड अगर 4 डिजिट का पहले से फिक्स है कि हाँ। अभी इमेजिन करो मुझे, व्हाट इज माय ऑपरेशन बेटा, व्हाट इज माय ऑपरेशन, व्हाट इज माय ऑपरेशन, एडिशन, एडिशन। एडिशन। तो ये मैं कौन सा ऑपकोड यूज करूंगा क्लास, कौन सा ऑपकोड यूज करूंगा, 1001। 1001. 1001। तो इससे मशीन समझ जाएगा भाई मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, आई नीड टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। सपोज यहाँ पे लिखा होता है 5 इंटू लिखा होता है सपोज 6, तो मैं विच ऑपकोड आई एम गोइंग टू यूज, विच ऑपकोड आई एम गोइंग टू, 1000। 1000। हाँ, तो ये इससे क्या होगा, मशीन विल अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। द फर्स्ट थिंग यू विल पास, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो फर्स्ट 4 बिट्स होंगे बेटा, वो आपको होंगे ऑपरेशन पे। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूं 5 + 6 का, ओके। तो मैं ये ऑपकोड यूज करूंगा 1001, ये हो गया आपका 1001। क्लास एग्री, एनी डाउट्स टिल नो, एनी डाउट्स टिल नो, No, sir. ओके। नो सर। अभी मैंने आपको समझाया था ये बिट्स, बिट्स है ना बेटा, बिट्स, बिट्स मतलब क्या बेटा, बाइनरी नंबर्स, मतलब 0 and 1। यहाँ पे ध्यान दो, बिट्स मतलब होते हैं 0 and 1। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, 1 KB मतलब 1024 बाइट्स, 1 MB मतलब 1024 KB, 1 GB मतलब 1024 MB, एंड 1 टेराबाइट 1024 GB। समझ आ रहा है क्या? तो एक सिंपल सा, दिस इज द बिट्स इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 and 1। तो आपको ध्यान दो, मशीन लैंग्वेज ऑलवेज वर्क्स अपॉन बिट्स, मशीन लैंग्वेज ऑलवेज वर्क्स अपॉन बेटा, किस पे काम करते हैं बेटा, बिट्स पे। तो मुझे यहाँ पे ये तो पता चल गया ऑपरेशन मुझे क्या परफॉर्म करना है, बट ये 5 और 6 को अंडरस्टैंड करेगा मशीन मेरा, व्हाट इज 5, व्हाट इज 6? No, sir. नहीं, मुझे क्या Sir. करना है, कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर क्लास। तो बाइनरी में कन्वर्ट करो बेटा, 2 2 are 4, रिमाइंडर 1, 2 1 are 2, रिमाइंडर 0। इसको आप रिवर्स में प्रिंट करा दो क्लास। तो क्या आएगा बेटा, ये 5 के मतलब क्या होगा, 101, तो ये हो जाएगा 101, और बाकी जगह आप 0 लगा दो, बाकी जगह 0। ओके, अभी मुझे बताओ व्हाट इज 6 का आप बाइनरी बताओ। 6 Sir, क्या आएगा? 110. 110. हाँ, सर ये 2 3 are, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं सर? क्या निकाल रहे हैं बेटा? सर ये एलसीएम टाइप का क्यों कर रहे हैं? एलसीएम टाइप नहीं बेटा, आई एम कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू बाइनरी। आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज माय मशीन लैंग्वेज ऑलवेज अंडरस्टैंड्स 0 and 1। ये बिट्स पे काम करता है, सिर्फ 0 1 पे काम करता है। वो उसको 5 और 6 का मतलब नहीं पता, उसको एडिशन नहीं पता, वो सिर्फ किस में काम करते हैं, 0 and 1 पे। गेटिंग माय पॉइंट? सो अभी ये एलसीएम नहीं बेटा, एलसीएम नहीं है, एलसीएम क्या ना वो तो वो अलग चीज है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो बाइनरी के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से आप डिवाइड करते जाओ। तो आप कितने बार, 2 2 are 4, रिमाइंडर कितना आएगा 1, एंड 2 1 are 2, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और जो भी आंसर है उसको आप रिवर्स में प्रिंट कर दो, तो हो जाएगा 101, और बाकी जगह आप 0 से इसको पैडिंग करो। ओके सेम, हाँ ओके, द सेम थिंग आप 6 को कन्वर्ट करो। आप मुझे आंसर करना, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, नहीं आएगा समझ तो पूछना। अब 2 3 are 6, 2 3 are 6, रिमाइंडर कितना आएगा
रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो 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 अब क्या करें, फिर से 2 से डिवाइड करें, कितनी बार डिवाइड होगा? वन सर रिमाइंडर वन रिमाइंडर 1, बाकी कुछ बचा नहीं, अब इसको रिवर्स प्रिंट कर दो, क्या है बेटा? 1 1 1 1 0, बाकी अब बाकी जगह 0 से पैडिंग करो, 0 से पैडिंग कर दो। आप देख रहे हो आपको अगर सिर्फ 5 और 6 को मुझे एडिशन कराने के लिए मुझे कितना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इमेजिन करो आपको और बड़े बड़े नंबर्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है बेटा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज इट यूजर फ्रेंडली? नो सर No, sir. No, sir. नो सर Everything what ultimately you need to convert into binary, everything in binary 0 and 1. It's very hard to convert because आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इसमें। हाँ उसके लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? एनीबॉडी? Sir, it is very always fast. accurate. इट इज वेरी फास्ट। आपको आप इंग्लिश में बात करो, Don't need a compiler. एग्जैक्टली, डोंट नीड अ कंपाइलर, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मशीन को मैं मशीन में ही बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है क्लास? तो मशीन डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको कंपाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फास्ट होगा। इसकी लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम इसको थोड़ी इसमें आपको यूजर फ्रेंडली नहीं है। सेकंड क्या आता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आती है, इसकी रीडेबिलिटी नहीं है अच्छे से, हम इसको रीड नहीं अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपको मैं सिंपल डिजिट लिख के दूं तो आप थोड़ा समझ प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो ये प्रॉब्लम थी बेटा मशीन लैंग्वेज में। क्लास आई होप आई एम क्लियर, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? sir. एनी डाउट? प्लीज कोई डाउट है तो बताओ, आगे नो बढ़े। सर यस सर No, sir. जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे उस समय शुरुआत में, उनमें कोई डाउट है? मैं डांटूंगा नहीं, पूछो, डाउट पूछो है तो। No, sir. ओके ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके द बेटा माइक ऑफ कर लो, ये कौन है माइक? ऋषभ, बेटा माइक ऑफ करो ऋषभ। ओके okay, the next, okay, the first computer language, okay, the first computer language algorithm concept, okay, second computer, okay, this is the history। मैं आपको बताया ना मशीन लैंग्वेज बिट वर्क्स अपॉन 20 बिट्स इन सिस्टम मेमोरी, ये कन्वर्जन मैंने समझाया था, इसको आप एक बार पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो बेटा, मैं याद है क्लास एग्जांपल समझा था, ये क्लास 5 और 6 वाला। Yes. Yes, sir. okay, Yes, sir. the next thing is advantage of machine language। तो पहला क्या था, डू नॉट रिक्वायर एनी कंपाइलर और ट्रांसलेटर। क्लास समझ आया? डू नॉट Yes, sir. ट्रांसलेटर मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर, ऑब्वियसली इट्स वेरी फास्ट एंड इट एक्चुअली अ कोर लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ये कोर लैंग्वेज है बेटा, बाइनरी लैंग्वेज बेटा। ओके बट इट इज हैविंग आल्सो डिसएडवांटेजेस। ऑल द ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। आपको ऑपरेशन कोड रिमेंबर करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन कोड? ये आपको लिखा ना, 4 डिजिट आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज क्या इसमें ऑपरेशन कोड है। क्लियर है क्लास? क्लियर है? Yes. And it is hard to understand and need expertise because you need to be expert. You have to be expert to code in binary language or machine language. It is time taking. Obviously, it's time taking, and it is low level language. It's very low level language. So these are some disadvantages of मशीन लैंग्वेज। इसलिए हमारा जो क्या होता है बेटा, नेक्स्ट लैंग्वेज इसीलिए इवॉल्व होता गया, कुछ प्रॉब्लम आई होंगे मशीन में, तो नेक्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली क्या असेंबली लैंग्वेज है, इसमें कुछ और हमको सॉल्यूशन दिया गया। जैसे कि आप ध्यान दो, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज basically it is a machine language but we have added some instructions into it। तो नेक्स्ट लैंग्वेज क्या बन गया बेटा आपका? असेंबली लैंग्वेज। कोई पूछे आपसे व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज सिंपली अ मशीन लैंग्वेज बट हैविंग सम एडिशनल इंस्ट्रक्शंस with the help of, आप याद है मैं आपको पढ़ाया था रजिस्टर्स, क्लास रजिस्टर्स। Yes, sir. तो रजिस्टर्स बेसिकली इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स लिमिटेड इन मेमोरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है बेटा, असेंबली में इसीलिए थोड़ा इतना यूज नहीं करते, बिकॉज में रजिस्टर्स जो होते हैं उसमें कॉस्टली यूज होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स बेसिकली क्या होता है, इट इज अ स्मॉल बिट ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन ALU। इट इज यूज टू असेंबली लैंग्वेज। तो अभी मुझे पता है कि असेंबली लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, असेंबली लैंग्वेज है तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड अ असेंबलर to convert assembly language into machine language।
तो असेंबलर क्या करता है बेटा, असेंबलर इंडायरेक्टली एक ट्रांसलेटर ही है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपके मशीन लैंग्वेज में। क्लास Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद बेटा असेंबलर क्या है, इट इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। मैंने बताया इसका एडवांटेज क्या है, इट इज मोर रीडेबल देन द मशीन लैंग्वेज। बिकॉज आपको मैं एक प्रोग्राम समझाता हूँ, इसमें नहीं लिखा, क्या मैंने नहीं लिखा है, आप ध्यान दो। सपोज मुझे ये सेम प्रोग्राम मुझे करना है बेटा, आपको ये जो आपने प्रोग्राम किया ना 5 और 6 आपने मशीन लैंग्वेज में किया, सेम प्रोग्राम मुझे करना है असेंबली लैंग्वेज में। तो आपको असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या, आपको पहले 5 और 6 को एक मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। एक ऑप्शन होता है बेटा मूव, क्या करेंगे हम लोग, मूव रजिस्टर 1 में क्या मूव करेंगे 5 को, उसके बाद एक और मूव करेंगे हम लोग R2 में, सेकंड रजिस्टर में मूव करेंगे हम लोग 6 को। क्लास समझ आ रहा है बेटा। उसके बाद हम दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे R1 कॉमा और R2। आ रहा है समझ क्लास? यहाँ पे ध्यान दो, Yes. यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल बेटा, मैंने क्या किया, आई एम मूविंग 5 वैल्यू इनटू R1, रजिस्टर 1 में मैंने पुट कर दिया, एंड अगेन वैल्यू 6 इनटू रजिस्टर R2, हमने दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये इंस्ट्रक्शन है, ये मूव करना है, ऐड स्टोर करना था इंस्ट्रक्शन, ये ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो आप देखो ये आसान है कि ये आसान है बेटा, ये मैंने असेंबली लैंग्वेज में लिखा, विच वन तो अभी क्या हुआ, पहले मैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली में फायदा क्या चीज है पता है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए डायरेक्टली, आपको ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या लिख दो बेटा, ऐड लिख दो। लेकिन इससे डिसएडवांटेज क्या है असेंबली लैंग्वेज में, कि इसमें आपको रजिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं विच इज वेरी कॉस्टली, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी मच यूज्ड राइट नाउ। क्लास आई होप आई एम क्लियर, क्लास आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ये लिखा था, इट इज मोर रीडेबल देन द मशीन लैंग्वेज, ऑब्वियसली इट इज मोर रीडेबल। समझ आ रहा है बेटा? आप ये देखो, कोई आपको डायरेक्टली आपको 20 बिट्स से लिख के दे दे, और यार असेंबली में असेंबली लैंग्वेज में क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. मनीष, Yes, sir. मनीष एनी डाउट? मनीष Yes, sir. रेज हिज हैंड, मनीष को डाउट है मनीष? नो सर गलती से दब गया था। नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ एक अच्छा ऑप्शन यहाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप रेज योर हैंड ना, आप यहाँ देखो ऑप्शन देखो रेज हैंड का, तो आप मुझे रेज हैंड करो, मैं आपको डाउट आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? तो मोबाइल में नहीं है तो ऑप्शन। मोबाइल पे नहीं है, होगा बेटा होगा, No, सब में sir. होगा। नहीं सर। ये है सर है मोबाइल पे ऑप्शन। है अपडेट नहीं हाँ हो बस रहा। आप लोग ना, हाँ बस क्या होता है ना, बस पढ़ाई के अलावा सारे बातें करा लो ना, फिर सभी बोलना चालू करते हैं। गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका असेंबली का, इट इज वेरी कॉस्टली, मैंने बताया ना, बिकॉज रजिस्टर्स आर वेरी कॉस्टली, इट कम्स अंडर लो लेवल लैंग्वेज। तो मैंने वही समझा था, हाई लेवल लैंग्वेज एल्गोल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, याद है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। व्हाई वी कॉल इट सी मिडिल लैंग्वेज, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम बोथ लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज फ्रॉम द हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी समझा चुका हूँ। दिस इज द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ लैंग्वेज सी 1972 1973 बेटा है ना, इसको 73 कर लेना आप लोग। क्लास ये लिखा बेटा 1973, आपके पास जो नोट्स होंगे उसमें आप 73 कर लेना। ओके ये ऐसा है। ओके ऑफिशियल लॉन्च कब हो बेटा, लॉन्च कब हो, 1972 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। डेनिस रिच ने इसको लॉन्च डेवलप किया था, कहाँ पे, AT&T बेल लेबोरेटरी में, यूएसए में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल, मैंने बता दिया प्रोसीजरल बिकॉज स्ट्रक्चरल और मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके क्लास, ये थियरी पार्ट समझ आया होगा आपको? सर एक क्वेश्चन है। हाँ Yes, बोलो, sir. हाँ बोलो। ये लैंग्वेज इतना पुराना है तो अब इसका R&D चल रहा होगा सर? ये बेटा एक्चुअली क्या हुआ, लैंग्वेज पुराना है तो बेटा, लेकिन इसमें क्या होता है पता है क्या, ये ना ये आपका मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप लैंग्वेज सी में आपको ना हर चीज आपको ना लॉजिकली आपको डेवलप करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? मदर लैंग्वेज आपको ऑलरेडी पुराना, आई एग्री, लेकिन सोचो अभी आप ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोलते हैं इसको। क्यों? बिकॉज इसमें जो लॉजिक आप डेवलप करते हो अपना लैंग्वेज सी,
आपको पता है, आप जब लैंग्वेज सी आपने अगर अच्छे से आप पढ़ लिया आप लोग, ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज इजीली आप सीख सकते हो. Once you are better in language C, you are comfortable in language C, you can learn any language. समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्लास? Yes, sir. इमेजिन Yes, करो, sir. मैं भी कुछ दिन पहले पाइथन पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि पाइथन अगर आपको लैंग्वेज सी आपको एक बार आगे बस सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है, लॉजिक. आपको पता है अभी थर्ड सेमेस्टर आप जाओगे एक लिस्प प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, LISP, लिस्प प्रोग्रामिंग. इट इज सिंपल, बट आपको उसमें क्या रहेगा, लैंग्वेज सी, इफ यू नो लैंग्वेज सी यू कैन राइट एनीथिंग इन एनी लैंग्वेज, बस सिंटैक्स का डिफरेंस है वहां पे, बाकी कुछ भी नहीं. समझ आ रहा है? आपको लॉजिक आपको डेवलप है, तो आप किसी चीज में डेवलप कर सकते हो, इसलिए लैंग्वेज को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. ओके, आपको लैंग्वेज सी आता है तो आपको C++ आ जाएगा, सिंटैक्स सेम है. लैंग्वेज सी आता है तो आपको जावा आ जाएगा, लैंग्वेज सिंटैक्स पूरा सेम है. पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सबको सेम है. डॉटनेट पढ़ सकते हो, लैंग्वेज सिंटैक्स सेम है. आ रहा है समझ? सिंटैक्स सेम करके आपको बाकी लैंग्वेज बहुत इजीली आप सीख सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope today's class is worthful to all. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो अपन नेक्स्ट क्लास से फिर से एक रिवीजन क्लास 1 या 2 दिन और पढ़ाऊंगा, फिर हम ऑप्टेटर तक समझाऊंगा, फिर उसका हम कंप्लीट करेंगे. ओके, लास्ट एनी डाउट क्लास? नो? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई भी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो अभी बच्चों का. कौन लेके देगा मुझे, और मुझे व्हाट्सएप करो. कौन करेगा? कौन? आशीष प्रजापति. आशीष प्रजापति, नो रिस्पॉन्स. आतिफ पांडे. सर मैंने ले लिए, मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा. ओके ओके, ठीक है हर्ष. थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल. Thank you, sir. वेलकम सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.